Hello guys, welcome to my new vlog. This is me Piyush Joshi. Welcome to my new vlog, Piyush Joshi's vlog. So guys, आज का vlog हम start करने जा रहे हैं. All thing has been ready. सिर्फ हमें मेरा सिस्टम जो है वो रेडी करना है. सुबह उठ करके नहाना धोना सारा कुछ हो चुका है. It's time to have a tea. So चाय पीते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं नई एनर्जी के साथ में. आपको पता ही है वी आर इंडियंस, बिना चाय के बिना कुछ होता ही नहीं है. It's अमृत फॉर अस. सो गाइस फाइनली सारी चीज़ें जो हैं सब कुछ चीज़ें रेडी हो चुकी है. सिस्टम हमारा लॉगिन हो चुका है. लगभग हम भी रेडी स्टेटस पे हैं. सो लेट्स सी कि कौन सा कॉल आता है. सो नॉर्मली आज जो टाइम था मेरा, मैं 8 बजे सुबह उठ चुका था और 8 बजे उठने के बाद ब्रश वश करके डायरेक्ट सीधा नहा करके चाय वाय पी करके एकदम रेडी. अर्ली मॉर्निंग ही मेरा सारा शेड्यूल जो है वो स्टार्ट हो जाता है. सो नेक्स्ट ब्लॉग में हम पूरा कवर करेंगे, यानी कि पूरा मॉर्निंग से मेरा उठने से लेकर के हर एक चीज़ में कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी मेंटेन करता हूँ ड्यूरिंग वर्क फ्रॉम होम. सो लेट्स सी कि कॉल आता है. सो देन वी विल रिजॉल्व द क्वेरी. क्यू में कॉल चल रहा है. यू वांट टू बाय अ डिवाइस फॉर मल्टीटास्किंग, स्पेशली फॉर लाइक क्रिएटिंग अ शॉर्ट वीडियो फॉर अ क्रिएशन पर्पस एज वेल एज for coding purpose, for education purpose you want to buy the device. It is a primary requirement for you. Can I place your call on hold for 2 minutes so I can check details for you and I can guide you proper suggestion regarding the concern? Thank you so much. Please be on concern. So basically भाई साहब को चाहिए डिवाइस, और वो ऐसा डिवाइस हमको परचेज़ करना है हमारी कंपनी का जो क्रिएशन के पर्पज़ से, मतलब एज अ क्रिएटर इनको वीडियो एडिटिंग, शॉर्ट वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ करना है, कोडिंग के पर्पज़ के लिए करना है, एवरीडे यूज़ के हिसाब से इन्हें डिवाइस लेना है. सो अब हम यहाँ पर इन्हें सजेस्ट करेंगे बेस्ट जो इनके लिए अच्छा हो सकता है. गेट स्टार्टेड. Okay, I would like to inform you there is one fabulous best devices I found regarding your concern. Let me introduce very firstly the specification of device, that is processor AMD Ryzen AI 5 processor we are providing you, which is providing you 2.0 GHz speed with 4 cores at threads, plus we are providing you AMD XDNA NPU up to 50 TOPS. The thing is that when you will perform the heavy task on the particular device, sometimes in other devices you maybe suffer with the heating issue. Why? Because when we are performing the heavy task with a particular processor, so there will be extra load on the processor. So to decrease that load, we have added a chip AMD XDNA NPU with the 50 TOPS. With what it will we can say what it will help to the processor, it will take each and every extra load from the multitasking, heavy tasking applications. It will take the load will be on NPU. So we can say the load on the processor will be decreased, that the heating issue will be not there. And the graphics, if you will talk about chip, no, actually with the processor there is an extra chip we are providing you for performing heavy task, that is NPU. If we will talk about the graphics with the particular device, like AMD Radeon graphics we are providing with the particular device, which will be enhance your experience regarding the video editing, visualization, as you informed me that you want to use for the creation purpose, like mini videos, short videos you want to edit. So it will be very helpful for you. Like AMD Radeon graphics will be perfect according to your work criteria. And particular device, with the particular device we are providing you 14-inch display. Actually NVIDIA is the different graphic card and AMD Radeon graphics is the different graphic card. It is we can see the much more competitive with the NVIDIA graphic cards. With the AMD Ryzen, the AMD Radeon graphics is the perfect match because processor is one of the heaviest processor with the AI 5 we are providing you, as well as the display will be 14-inch, 60 Hz refresh rate will be there, 300 nits brightness will be there. It will be compatible according to your work criteria, as well as you want to perform the coding like student purpose, and like you can say if you want to perform the coding regarding the tasks. So for that we are providing you a 16GB DDR5 onboard RAM, latest generation of RAM, which is expandable up to 32GB.
there will be 2 slots will be available. If we will talk about the storage with the particular device, like 4th generation of latest generation of SSD, we are providing you with the 512 GB, which is expandable up to 1 TB. Plus, as you guided me that you want to perform sometimes office work like Excel, PowerPoints also. So for that we are providing you Microsoft 365 Basic with 100 GB cloud storage for 1 year. Plus Office on 2024 with lifetime validity we are providing you with the particular device. So there will be no need to do any extra setup regarding your office work. So भाई साहब आखिरकार हमने एक डिवाइस बेच ही दिया. अब इनको हमें जो है मतलब मेल के थ्रू सारी जो डिटेल्स है वो शेयर करनी है. सो फाइनली डिवाइस हमने सेल कर दिया है, उसको पूरी तरीके से हम सेल कर चुके हैं. बस यही चीज़ होती है, टिप्स एंड ट्रिक्स होती है कि आप कस्टमर को किस तरीके से सेल कर रहे हैं. आप किसी भी डिवाइस को या कुछ भी चीज़ आपको बेचना है, इवन दो इफ़ यू आर लाइक अ बिजनेस रिलेटेड पर्सन, सो आपको उसको प्रेजेंट करना आना चाहिए कि हाउ टू प्रेजेंट दैट. लगभग हमने इतना बेहतरीन तरीके से उसको प्रेजेंट किया है कि उसको इतना अच्छा पसंद आया डिवाइस कि अब वो डिवाइस परचेस करने जा रहा है. तो लगभग हमारी आज की एक सेल तो कंप्लीट हो चुकी है. नाउ वी आर गोइंग थ्रू विद द डिफरेंट थिंग, दैट इज़ अनदर कॉल इज़ कमिंग. सो इन क्यू एक ऑन का कॉल है. सो लेट्स गो अहेड. लगभग सारा काम हो चुका है नाउ. सो गाइज इट्स नाउ टाइम टू टेक स्नैक्स. काफ़ी दिन तो बढ़िया ख़तरनाक वाला है क्योंकि कॉल फ्लो आज भी ज़्यादा है और लगभग थोड़ा सा माइंड जो है वो हैक्टिक वाली सिचुएशन बन रही है. तो थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए हम जो है थोड़ा सा स्नैक्स ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाए. क्योंकि क्या चीज़ क्या है कि बीच बीच में स्नैक्स खाने से थोड़ा सा अच्छा सा लगता है. एक्चुअली पता है मेन क्या है कि मैं थोड़ा सा फूडी हूँ. जब तक कुछ खाऊंगा नहीं जब तक मज़ा नहीं आएगा. कॉल तो आ ही गया भाई, आते से ही शुरुआत. सो लेट्स हैंडल. नहीं सर वैसा नहीं है. अगर सर जैसे पहली चीज़ तो ये है कि सर जैसे ही आउट ऑफ स्टॉक होता है ना उसी दिन से ये डिवाइस अगर मैन्युफैक्चरर्स का बंद होता है तो ये वेबसाइट से हटा दिया जाता है. बट अभी वेबसाइट पर है और आप उसके लिए बेफिक्र रहिए. ये मैन्युफैक्चर होगा और वापस स्टॉक में आ जाएगा. जितनी जल्दी हो सकता है हम आपको नोटिफाई भी कर देंगे कि कब तक अवेलेबल हो पाएगा. फिलहाल में इसके लिए अपडेट नहीं है कि कब तक अवेलेबल हो पाएगा सर. सो लगभग सारा काम हो चुका है. अब थोड़ा सा लंच कर लेते हैं क्योंकि इट्स टाइम टू टेक लंच. सो गाइस लेट्स सी कि किचन में क्या बना है, देखते हैं. भूख लगी है बहुत जोर की, कुछ खा लेते हैं. लेट्स हैव समथिंग. सो गाइस इट्स टाइम टू बैक टू द वर्क. वापस खाना वाना हो करके लंच कंप्लीट हो चुका है. अब इन भाई साहब को क्या है कि मतलब इन्होंने एक हमारी कंपनी का फ़ोन लेना है. सो ये चाह रहे हैं उसके बारे में जानना. तो चेक कर लेते हैं पहले कि अवेलेबल है भी या नहीं है. Yes sir, we deliver in Tamil Nadu also. In Pan India we are delivering sir. Not available under stock. May I know at which website you are looking for device? क्या ही है भाई साहब, क्या ही है. जो चीज़ है ही नहीं वेबसाइट पर भाई वो चीज़ इन्हें भगवान ला करके दे दे. सो गाइस दिस इज टाइम टू टेक टी. तो चाय पियेंगे. चाय पीने के बाद वापस काम पे लगेंगे क्योंकि सर मेरा दुखने सा लगा है. मतलब बहुत दुख रहा है, पूरी तरीके से हालत ख़राब है क्योंकि कॉल बैक टू बैक कॉल्स ले करके अब मैं इरिटेट हो चुका हूँ. तो मैंने सोचा कि अब चाय पी करके थोड़ा दिमाग ठंडा करते हैं. हाँ. सो गाइस नाउ बैक टू द वर्क. वापस काम पे लग जाते हैं. लगभग 4:40 हो चुके हैं, यानी कि 4:40 कह रहा हूँ. सो यूजुअली मैं मेरा जो ब्रेक का शेड्यूल होता है वो कुछ ऐसा होता है कि और मैं क्या करता हूँ कि टी ब्रेक में ही लंच ले लेता हूँ. 15 मिनट में खाना खा लेता हूँ क्योंकि बीच में क्या दिन भर में कुछ ना कुछ खाते रहना वो चलता रहता है. तो इसलिए फिर मैं उस चीज़ को मतलब लंच का जो 30 मिनट है वो मैं बचा लेता हूँ शाम तक के लिए. शाम को बच जाता है तो आराम से आधे घंटे का मैं ब्रेक लेता हूँ. जैसे अभी मेरे को मतलब लगभग ब्रेक तो मेरा ख़त्म हो चुका है. आधे घंटे का ब्रेक मेरा जो बचा हुआ था लंच का वो मैंने अभी लिया है. अब इस लंच के ब्रेक में मैंने टी पी है और थोड़ा 15 मिनट रेस्ट किया है.
तो एक वो टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा मैं ये चीज़ें करता हूँ। सो लगभग 5 बज चुकी है, तो अब जो मेरा शेड्यूल रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा कि 5 बजे से 1 घंटा कंटिन्यू मुझे बैठना है। इसमें मैं ब्रेक नहीं ले सकता हूँ, सारे ब्रेक्स ख़त्म हो चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। बचा हुआ काम ख़त्म करते हैं और शिफ्ट ख़त्म करते हैं। अब इनको एक डिवाइस परचेस करना है, चेक करना है कि वो स्टॉक में है कि नहीं है, बट आई एम श्योर कि वो आउट ऑफ स्टॉक ही होगा। सर जैसे कि जो पर्टिकुलर डिवाइस आप जो स्टॉक में चेक कर रहे हैं अवेलेबल नहीं है, इसके रिगार्डिंग कोई अभी अपडेट नहीं, कब तक ये अवेलेबल हो पाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सर कि एक बार नोटिफाई मी वाला जो बटन है वहाँ पे क्लिक करके अपना ईमेल एड्रेस आप इनपुट कर दीजिएगा। जैसे ही अवेलेबल हो पाता है एज सुन एज पॉसिबल आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि डिवाइस इस तारीख को इस समय पर अवेलेबल होने वाला है। सो फाइनली गाइस हमारा काम ख़त्म हुआ। बहुत हेक्टिक काम था आज का, बहुत सारा कुछ काम था वो भी पेंडिंग था, जो कि सारा ख़त्म हो चुका है। अब हमारी शिफ्ट भी ख़त्म हो चुकी है, अप्रॉक्स 6:15 हो चुके हैं, 6:15। सो हमारा सारा काम अभी ख़त्म हो चुका है गाइस। सो आज का मेरा पूरा ऐसे ही रूटीन रहा। सो हम अब कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया है, मेरी डेली रूटीन अगर आपको पसंद आया है, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।